Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing series, we have adopted now a test series model. So what we do, at 10 a.m. daily, we give you one question which is covered from GS 1, 2, 3, 4, thoroughly from all the topics. Also, we will provide a model answer at the end of the day in our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. अब हम 90 days free evaluation भी provide कर रहे हैं. Why not avail the benefit? Send us your handwritten answers in the group Answer Writing by Prudent IAS. There we evaluate one answer daily at no cost. You can also access the evaluated answers, do some peer-to-peer interaction. Without wasting time, let's quickly give you the question. Today we have chosen the question from history section. The Bhakti and Sufi movements brought about a silent revolution in the social and religious life of medieval India. Examine their teachings and impacts on Indian society. This is a 10-mark, 150-word question. Quickly, I'll be giving you some context, demand and approach, and then you can start writing this answer. So, Bhakti and Sufi movement, a very important topic. मेडिवल इंडिया से देखा जाए तो कुछ ही सेक्शन से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एक ये सेक्शन हो गया भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का. अब हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन. In the second video of this series, I have thoroughly explained each and every directive word. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, just go back and watch it because directive word को समझने से आपको डिमांड आधी पता ही चल जाती है. What the question is actually asking and what you need to write, how you need to structure your answer. Here, you need to write about the core teachings, their impact across a number of parameters, जैसे caste हो गया, religion हो गया, vernacular literature, etc. So, this is the basic demand of the question. I'll tell you the approach in brief. अब देखिए ना, medieval times पे society में बहुत ज़्यादा rigid orthodoxy था, caste divisions थे, and then these movements were though a silent revolt, ये 1857 की तरह कोई loud revolt नहीं थे, but they brought in the fresh air of love, devotion, peace, है ना. उसी के बेसिस पे हमें अपना आंसर स्ट्रक्चर करना है. इंट्रोडक्शन में we can write about their teachings. We can write about the significance of their teachings. एक लाइन में आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए what about these movements were and then the significance. 10-mark question है, one line will be more than enough. Quickly jump to the body of answer. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली इतने डायमेंशंस नहीं बताए गए कि किस तरह से आपको सब हेडिंग्स लिखनी है. एक मेन डायमेंशन है कि टीचिंग्स और उनके इम्पैक्ट्स. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेग्रीगेट दीज, बट व्हाट आई विल सजेस्ट हियर इज since this is a 10-mark question, just write a clubbed heading about the teachings and the impacts of Bhakti and Sufi movements. अब under this you can give multiple subheadings. जब आप आंसर लिखते हैं ना, ट्रस्ट में बहुत बार ऐसा होता है, दिमाग में आता ही है नहीं कि इसमें क्या सबहेडिंग्स लगे. टीचिंग्स पता है, इम्पैक्ट पता है, बट किस तरह से स्ट्रक्चर करें. वेरी इजीली जस्ट गो थ्रू ऑल योर पेपर्स. किस तरह से सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल डायमेंशंस. जब भी कभी इम्पैक्ट की बात हो रही है वो भी सोसाइटी पे, तो सोसाइटी के क्या डायमेंशंस, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये सारे, इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे हम लिख सकते हैं. किस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं? सोसाइटी में रिजिड ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट डिविजन्स के बारे में, कैसे इक्वालिटी की बात होती थी. ठीक है. रिलीजियस में क्या बोल सकते हैं हम? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉस्टर करते थे. पॉलिटिकल कॉजेज में क्या लिख सकते हैं कि जो डोमिनेशन था बाय द रिलीजियस डोमिनेशन बाय द एलीट सेक्शन, उसको कर्ब करने के लिए काम हुआ. कल्चरल पार्ट में अबाउट म्यूजिक, वर्नाकुलर लिटरेचर, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि इनकी टीचिंग्स के हैं ना. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हेयर इज टू कोट द नेम्स. फॉर एग्जाम्पल भक्ति मूवमेंट से आप मीराबाई, कबीर, है ना. अब सूफी सेंट्स, चिश्ती सेंट्स के बारे में लिखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एनरिच दिस आंसर. इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का आंसर होते हुए डेट्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है. डेट ज़्यादा आपके इसमें लिख देंगे, इंट्रोडक्शन में लिख देंगे अबाउट दिस पीरियड कि किस टाइम पे इनका राइज हुआ. उसके बाद थ्रू आउट द आंसर यू विल हैव टू सब्सटैंशिएट विद ईच एंड एवरी सेंट देयर पर्टिकुलर टीचिंग एंड द इम्पैक्ट इट क्रिएटेड. देन क्विकली जम्प टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन सिंपली एक बैलेंस कंक्लूजन होगा. बहुत ही कंसाइज वे में क्या लिख सकते हैं, दैट किस लाइन्स पे हो सकता है. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कंक्लूजन दैट यू विल बी राइटिंग, बट ऑन दीज लाइन्स यू कैन राइट दैट दीज मूवमेंट्स redefined religion as a humanistic and unifying force in the medieval India. Right? I'll repeat it for you, that the Bhakti and Sufi movements redefined religion as a
यूनिफाइंग एंड ह्यूमनिस्टिक फोर्स इन द मेडिवल इंडिया। इतना लाइन जो इसकी पूरा आंसर को भी आपके सम अप कर दे रहा है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस भी बता रहा है, पॉजिटिव नोट पे बैलेंस नोट पे एंड हो रहा है और आपकी वर्ड लिमिट भी ब्रीच नहीं हो रही है। इसी लाइंस पे आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट राइटिंग। और 10 नंबर का आंसर है तो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए। इफ इट इज टेकिंग मोर देन दैट, देन you need to work on time. This is it for today. We'll be coming up with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.